Hello all. So let's continue our chapter number 6, Bhakti Sufi Traditions. Today we are going to focus on Sufism. अभी तक हमने चैप्टर में भक्ति ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि कैसे जो न्यू फर्मेंट ऑफ रिलीजन है विच इज़ इस्लाम इज़ एंटरिंग इन इंडिया especially from the 8th century onwards with the coming up of Muhammad Qasim who conquered Sindh in 17 and 11. देन फिर हमने इस्लाम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े. अब हम पढ़ेंगे सूफिज़म के बारे में. सो सूफीज़ वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम. They were critical of dogmatic definition and scholastic methods of interpreting the Quran. They emphasized interpretation of Quran on the basis of personal experience. ज़्यादातर जो सूफीज़ थे वो लोग ये मानते थे कि जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है गॉड के साथ दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. जिस टाइम पे सूफीज़ और सूफिज़म ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था उस टाइम पे बेसिकली जो उलेमास हैं हु वर द preachers of Quran and Sharia, they were becoming more and more materialistic. जो religion है वो भी politically और जो materialism है उसमें बहुत ज़्यादा increase हो रहा था और जो true meaning of religion है that is the true devotion to God that was missing. So against that materialism a new tradition arose which was the Sufism. So now we are going to basically focus on the practices of Sufism. What were the various practices that developed within the Sufism? By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature or Quranic studies and Sufis practices. 11th century तक आते आते सूफीज़ ने अपने खुद की जो लिटरेचर है वो डेवलप कर ली थी और अपनी खुद की प्रैक्टिसेस भी डेवलप कर ली थी. सूफिज़म जो है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन में डेवलप होने लगा विच वॉज एंड द सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज नोन एज खानका और हॉस्पाइस, जहाँ पे कि जो शेख है, शेख मीन्स द chief Sufi saint, he used to live along with his disciples and his family members, and it was a place where anyone who wants to seek the blessing of the Sufi saint can come and visit him there. So अब हम देख रहे हैं कि जो सूफिज़म एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था वो कैसे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में स्लोली डेवलप हो रहा है. So the Khanqa or the hospice was controlled by a teacher or a master known as Sheikh, Peer और Murshid. उसके बाद वो लोग जो शेख है वो अपने सक्सेसर्स को अपॉइंट करते थे और इस तरह से एक पूरी चेन स्टैब्लिश होती थी एक सक्सेसर और एक सूफी सेंट के बीच में जो कि बहुत सेंचुरीज तक कंटिन्यूसली स्टैब्लिश होती गई. Silsila literally means a chain, signifies a continuous link between masters and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. So this was basically tracing their genealogy from Prophet Muhammad. So our focus is basically on the practices that were evolving. पहली प्रैक्टिस थी कि एक प्रॉपर अब प्लेस थी जहाँ पे कि आप एक सूफी सेंट को मिलने जा सकते थे. दूसरी प्रैक्टिस थी सिलसिला की विच मीन्स कि एक सूफी सेंट जो अपना पूरा जो सक्सेशन है उनका ही यूज टू पास ऑन सो दैट एक पूरी चेन बने, एक पूरा लिंक बने ताकि जो डिवोटीज़ हैं वो हर जनरेशन के साथ खुद को लिंक कर सकें और ताकि ये पूरा जो सूफिज़म है ये खुद को किससे लिंक कर सके, प्रॉफिट मोहम्मद से. सूफी सिलसिलास अलग अलग इस्लामिक वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में हमें मिलते हैं. नाउ देयर वॉज अनदर कॉन्सेप्ट और द प्रैक्टिस दैट डेवलप्ड विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ दरगाह. सो दरगाह इज़ अ पर्शियन टर्म, इट मीन्स tomb. When the sheikh died, his tomb shrine became the center of devotion for his followers. This encouraged the practice of pilgrim or ziyarat to his grave, particularly on his death anniversary. It was believed that after the death, the soul of sheikh get united with the soul of Allah. People sought their blessing to attain material and spiritual benefits. This evolved the cult of Sheikh revered as Wali. So basically what used to happen slowly as the institutionalization and the practices of Sufism developed, now another practice developed was the visiting of the shrine of the Sufis saints after their death. So this was known as ziyarat. जो pilgrimage है जो हम नॉर्मल टर्म में यूज़ करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ziyarat. कि जब भी सेंट की डेथ एनिवर्सरी होती है स्पेशली जिसे कि उर्स भी बोला जाता है, सो इट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड अ
it is considered as a marriage anniversary. Marriage anniversary here signifies that now the soul of the Sufi saint is actually united with the God who is अल्लाह. तो इसलिए उनकी जो हर ईयर का ये ट्रेडिशन बनता गया कि जो सूफ़ी सेंट की डेथ एनिवर्सरी पर लोग जाके वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते थे, दुआ मांगते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब एक सूफ़ी सेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद वो गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हैं, जिस वजह से जो उनकी पावर्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं और एंड दे आर कैपेबल टू परफॉर्म मिरेकल्स. वो मिरेकल्स ही परफॉर्म कर सकते हैं. सो इसीलिए अब नाउ द सूफी सेंट्स वर रिवर्ड एज वाली. वाली मीन्स the friend of God who is so close to them that they can now perform the spiritual and magical practices as well. Now there were people or who used to practice Sufism इन देयर ओन वेज. एक तो था पूरा इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना जहाँ पे कि कानखा है, सिलसिला है, दरगाह है, और एक सूफ़ी सेंट्स थे जो बिल्कुल जो ना ही शरिया को फॉलो करते थे और वो ये सोचते थे कि हमारा जो ट्रेडिशन है, मतलब उन्होंने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उन्होंने शरिया को फॉलो नहीं किया, जिसमें कि आते हैं हमारे कलंदर्स, मलंग्स एक्सेट्रा. और ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिसेस है एस्थेटिज़म की, जो हार्श प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते थे और मेडिकेंट्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और अपना जो वैल्यूज़ है जिनको ये या फिर जो इनके बिलीव्स है जो ये बिलीफ रखते थे उसको ये लोग प्रीच करते थे अलग अलग पार्ट्स में, अनलाइक द अदर सूफीज़ हु हैड देयर ओन इंस्टीट्यूशंस लाइक द कानखास. सो बेसिकली जो सूफीज़ है वो भी 2 टाइप्स के कैटेगराइजेशन में आने लगे. पहला है बेशरिया. बेशरिया वो दो सूफीज़ हु डिड नॉट फॉलो शरिया, जो कि मुस्लिम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे. एंड देन बाशरिया वो बेसिकली द सूफीज़ हु वर फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स. सो नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सूफीज़ की प्रैक्टिसेस किस तरह से एमर्ज हो रही थी. नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दीज प्रैक्टिसेस वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड.